Hello, people. Today is our last chapter of this series that we had taken up 2 months ago. It is about the salient features of our constitution. Generally, you would see in most of the books, even in your action plan, this chapter is given at the beginning of the uh, book. But I believe कि जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं होती है per se, how would you be able to understand the salient features of the constitution? And therefore, thus, I generally take this chapter up at the end of the lecture series. So this is our last chapter, our last topic, right? Let us begin to understand the salient features of the constitution. एक तो हमने ये देखा था कि 42nd Constitutional Amendment Act was the one which is known as mini constitution, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन 1976 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? केशवानंद भारती केस 1973 में Supreme Court ruled that the constituent powers of Parliament doesn't allow to change the basic structure of the Constitution. But otherwise आप किसी भी तरह से amendment कर सकते हैं if you do not touch the basic structure, if you do not hamper the basic structure. So this 42nd Amendment Act was brought in up as a mini constitution. ठीक है. Now some of the important features of the constitution. देखिए आज जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जो आपको अब तक नहीं पता है, because we have already studied the constitution in very much detail. तो अब उसके बस important features is what I'm going to talk about, right? एक important feature when you'd be asked, you would talk about its length. It's the lengthiest written constitution in the world. The Indian Constitution is the lengthiest of all written constitutions. And presently, it contains a preamble, जिसको हम पढ़ चुके हैं अलग से, about 470 articles, जिनमें से important ones हमने आपको कहा है याद रखने के लिए, but अगर नहीं भी याद होते हैं तो as you go about revising them, आपको आसानी से जो important है वो याद हो जाएंगी, but otherwise इतना सारे के सारे आपको याद करने की anyways जरूरत भी नहीं है. And we have also seen कि हमारे पास 12 schedules है which we have again dealt with in detail. Detail is in क्या क्या प्रोविजंस है, क्या चीजें हैं, किस स्केड्यूल में किस बारे में लिखा हुआ है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाट I feel is the most important aspect when we have to study the schedule, all of these 12 schedules. ठीक है, आपको उतना ही करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा, मतलब जब हम लोगों ने लेक्चर्स लिए थे तो हमने बताया था आपको कि फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेम्स की बात की गई है ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, द नेम्स ऑफ इवन यूटीज एंड देयर एक्सटेंट वहां पे लिखा हुआ है. सेकेंड स्केड्यूल talks of emoluments, allowances, privileges of various people in the country who are heads of some big bodies, like head of the state है president, उसके बारे में उसके allowances, emoluments, privileges के बारे में बात है, गवर्नर के बारे में है, the speaker and deputy speaker of Lok Sabha, similarly the chairman of Rajya Sabha and the deputy chairman of Rajya Sabha. सेम चीज स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दिस फॉर लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट.
ये लोगों के बारे में बात की है। एंड देन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन लोगों के बारे में सेकंड स्केड्यूल बताता है। इन लोगों के बारे में मतलब इनके एमोल्यूमेंट्स, इनके अलावेंसेस, इनके प्रिविलेजेस, बट अदरवाइज इनको पैसा कहाँ से आ रहा है? इज इट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट? एंड द पेंशंस कहाँ पे? जजेस का हमने देखा था, राइट? वो सैलरी कहीं से बन रही है, पेंशन कहीं और से बनता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स एनीवेज हम देख चुके हैं। और 12 शेड्यूल्स क्या है, कौन से स्केड्यूल में क्या बात हुई है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका लेंथ बहुत बड़ा है इन द एंटायर कंट्री, सबसे बड़ा, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल, अबाउट 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सारे के सारे लीगल ल्यूमिनरीज इन्वॉल्व थे। सारे एज एन सॉरी, हमको सारे नहीं कहना चाहिए था। देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, बहुत सारे लीगल प्रैक्टिशनर्स, लॉ की समझ रखने वाले, लॉ को सीखे पढ़े लोग शामिल थे। एंड देयरफॉर इसकी भाषा थोड़ी सी लीगल हो जाती है, थोड़ा लीगैलिटी कॉम्प्लेक्स बनाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि लॉ की समझ रखने वाले लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो उसका एक एडवांटेज भी हमको दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ द डिटेल्स, in terms of the provisions, in terms of clauses and sub-clauses involved in the articles, right? And we have a single constitution for the entire country, चाहे वो सेंट्रल को एप्लीकेबल हो चाहे स्टेट्स को एप्लीकेबल, और जहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं यूटी भी आ जाएगा, इवन एक्वायर्ड टेरिटरी भी यहाँ पे आएगा, राइट? तो हमारे पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है पूरे देश के लिए। And also we know that the entire constitution, it's drawn from various sources. कौन कौन से सोर्सेस से कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ली गई है, दैट वी शुड नो, क्योंकि ये चीज प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस जीएस आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को इसको यूज करना चाहिए, बिकॉज मेंस में इफ यू कोट द सोर्स ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक और प्रोविजन इन्वॉल्व, तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर स्कोरिंग। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से वी हैव टेकन द फेडरल स्कीम कि यूनियन अलग होगा, स्टेट्स अलग होंगे एंड उसके नीचे लोकल बॉडीज अलग होंगी, और ये अपने अपने लेवल पे सारे लोग काम कर रहे होंगे। दिस फेडरल स्कीम हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। द गवर्नर्स ऑफिस, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। But understand here that कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये फेडरल स्कीम में जो फेडरेशन है वो
सेंटर को स्ट्रांग बनाएगा और स्टेट को उससे नीचे रखेगा, ये चीज ली है। फेडरल स्कीम लेना अलग बात है, जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया है, एंड फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्गर सेंटर अलग बात है, जिसका मतलब होता है कि सेंटर विल हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्रोल ओवर द लोअर सबऑर्डिनेट लेवल्स, दैट इज द स्टेट एंड द लोकल लेवल। ये चीज हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये अलग बात है, थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, समझना कौन सी चीज कहाँ से ली है। और ये चीज जब हम कह रहे हैं कि सेंटर स्ट्रांग होता है इन आवर फेडरेशन, द फेडरेशन विद स्ट्रॉन्गर सेंटर, ये आपको कहाँ पे दिखाई देता है? इन इमरजेंसी प्रोविजंस, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तीनों प्रकार की इमरजेंसी में सेंटर बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, और सेंटर स्टेट के काम करने लगता है, उसका पावर टेक ओवर करता है, राइट। सिमिलरली गवर्नर का ऑफिस, कि एक गवर्नर ऐसा व्यक्ति होगा हु वुड बी एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द सेंटर, जिसको हम स्टेट में स्टेट लेवल पे अपॉइंट करेंगे। ये चीज गवर्नमेंट के ऑफिस को लेना और उसका अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमने गवर्नर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सेंटर से स्टेट के लिए जाएगा, ये चीज ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। बट उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा एट द सेंटर, सॉरी एट द स्टेट लेवल, ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, ये चीज हमने ली है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये दोनों थोड़ा अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग जगह से ली गई है, मतलब सिमिलर चीजें अलग अलग जगह से ली गई है, इनको याद रखना, ठीक है। नाउ इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने जुडिशियरी लिया है, द पब्लिक सर्विस कमीशंस, द इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया है, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अभी जो दो बातें की, उसके अलावा रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास होंगे, ये लिया है। अभी फिलहाल रेसिड्यूरी पावर्स हमारे यहाँ पे किसके पास है? सेंटर के पास। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी है व्हेन वी स्टडीड इंटरस्टेट रिलेशंस एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना। तो रेसिड्यूरी पावर्स सेंटर के पास होंगे, ये चीज हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। देखिए कोई भी हम ना नई बात नहीं बता रहे आपको, दिस यू ऑलरेडी न्यू, कि रेसिड्यूरी पावर पहले गवर्नर जनरल के अंदर वेस्टेड था, और अब आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किसको दिया है? सेंटर को दिया है, ये आपको पता है। दिस इज जस्ट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बस एक नई बात है जो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब जुडिशियरी पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप कैसा होगा, ये तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले लिया है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगा, जिसके बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को ये एडवाइस कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। ये चीज हमने कहां से ली है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आपको प्रोविजंस पता है कि जब प्रेसिडेंट एडवाइजरी एडवाइसेस मांगता है सुप्रीम कोर्ट को,
तो किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना जरूरी होता है और किन केस में वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ये भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है, राइट। हियर जस्ट नो कि ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्योंकि हमको बहुत समय तक ब्रिटिश ने रूल किया था और हम आदी हो चुके थे उनकी सिस्टम से। वो लोग यहाँ पे जैसे सिस्टम चला रहे थे, वी नो, वी वर फैमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसीलिए हमने इस सिस्टम को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वैसा का वैसा ही रखा है। प्लस फ्रॉम देम वी हैव टेकन रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट में जो कैबिनेट होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट के लोगों को जो दिए जाते हैं, जिनके बारे में हमने पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में बात की। देन द बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म मतलब एक लोकसभा होता है एंड एक राज्यसभा होता है। दिस इज वन, दिस इज बाई टू, ये दोनों हाउसेस मिला के पार्लियामेंट बनता है। बाईकैमरलिज्म का ये मतलब होता है कि दो हाउसेस होते हैं। सिमिलरली एट द स्टेट लेवल यू सी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों मिला के स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। बट वी हैव सीन व्हेन स्टडीइंग द स्टेट लेजिस्लेचर कि हर स्टेट में जरूरी नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल हो ही, ठीक है। तो इसका मतलब व्हाट एम आई सेइंग एसेंशियली इज दैट हर स्टेट में बाईकैमरलिज्म ये एक फीचर हो ऐसा जरूरी नहीं होगा, राइट, क्योंकि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं भी हो सकता है, तो वहां पे बाईकैमरलिज्म नहीं होगा, ओके। देन द प्रेरोगेटिव रिट्स, रिट के बारे में हमने आर्टिकल 32 में पढ़ा है, ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से समझिए यूएस गिव्स utmost importance to the freedom of individuals, और इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिए हैं, ये आप याद रख सकते हैं। जुडिशियरी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया था, बट यूएस से इस जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड इट शुड नॉट फेवर और be against the executive in any case, the legislative in any case, ये चीज इंश्योर करवाने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ प्रोविजन टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस देयरफॉर यू वुड सी कि हमारे पास जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन ऑफ पावर रखने की बात की जाती है इवन इन द डीपीएसपीस, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है। इसके अलावा आपको पता है इम्पीचमेंट और किसका होता है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो ये भी इनका रिमूवल भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का रिमूवल, एंड ऑल्सो द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हमारे यहाँ पे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है, ये भी हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। देन अबाउट द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश मतलब आयरलैंड, आपको पता है एक कंट्री है, आयरलैंड इज अ नेशन, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से विच इज नोन एज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से हमने क्या क्या चीजें ली है। We have taken the DPSPs from Irish Constitution, the
इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसके लिए वी हैव सीन कि कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम के मेंबर्स कैसे कौन लोग इलेक्ट करते हैं, और जब प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होता है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इलेक्शन में हिस्सा मतलब पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वो रिमूवल में, इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से चीजें देखी हुई है। दिस मेथड ऑफ इलेक्शन, नॉट ऑफ इम्पीचमेंट बट इलेक्शन, इम्पीचमेंट हमने ऑलरेडी यूएस से ले लिया था अभी थोड़ी देर पहले। अभी आयरिश से आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड द नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा में वी नो कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं, कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं। हमने यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए हमारे लेक्चर्स में सचिन तेंदुलकर का भी एग्जाम्पल देखा है, who has been nominated to the Rajya Sabha. ये जो nomination of members to the Rajya Sabha है, this we have taken from the Irish Constitution. ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, RED, रेड, इसमें भी ये आयरिश आर आता है, RED, रेड, ठीक है। You can have your own mnemonic or you can use mine. For Canadian Constitution, I have a mnemonic. Can I what is happening? Can I know Fed's address? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फेडरेशन with a strong center, residuary powers which are vested in the center, and advisory jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है, अब एक चीज अभी जो हमने बात की थी कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट, कि हम ऐसे याद रखते हैं कि जब भी हम किसी को पूछ रहे हैं कैन आई नो फेड्स एड्रेस, तो उनको पूछेगा व्हाई डू यू वांट टू गो टू फेड्स हाउस, फेड्स होम, फेड मतलब फेड इज माय फ्रेंड्स नेम, ठीक है, तो ही वुड आस्क मी कि फेड के घर आपको क्यों जाना है, एंड आई वुड रिस्पॉन्ड टू डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट, तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एक आ गया, ठीक है। दिस इज माय mnemonic, these are the source, these are the provisions that we have taken, we have borrowed from Canadian Constitution, okay. Then Australian Constitution से we have taken सारी ना ऐसी चीजें याद रखना जो जॉइंट मिलके सुलह करके समझदारी से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे समझो बहुत समझदार होता है, सब लोग मिलके वगैरह। तो कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट में दोनों सेंटर एंड स्टेट मिलके सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं, है ना। आपका अपना स्टेट का लॉ कुछ हो सकता है, सेंटर का लॉ कुछ हो सकता है with respect to the concurrent subject, ठीक है। Then joint sitting in the joint sitting of the parliament, joint sitting of both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, दोनों का मिलके joint sitting होता है पार्लियामेंट। तो ये दोनों मिलके है ना, तो ये मिलके चलते हैं ऑस्ट्रेलियन पीपल। और जब आप मिल के चल रहे होते हैं तो आपको क्या जरूरत होती है, मिल के चलना मतलब लैंग्वेज आपको बांधता है लोगों से, आपको सारे लोगों का लैंग्वेज पता होगा तभी आप सबके साथ रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं,
तो language of the preamble has been taken from the Australian Constitution. ठीक है, and when you know the language of the people away, staying away from your place, what would you do? You would go to their place because you know their language and you would trade with them. So trade, commerce and intercourse, all of these features have been taken from the Australian Constitution. ठीक है, then Weimar Constitution जर्मन की कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इससे हमने लिया है द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग, पता है हमको, इमरजेंसी के वक्त में वी हैव दिस फीचर दैट द प्रेसिडेंट सस्पेंड्स द फंडामेंटल राइट्स, है ना। 358 एंड 59 दोनों में अलग अलग तरीकों से इट इज द प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी के वक्त फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है। दिस फीचर हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन फंडामेंटल ड्यूटीज, जस्टिस, द 5-year प्लान। 5-year प्लान्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आई एम सिंपली सेइंग कि ये चीज पे हमने यूएसएसआर से ली हुई है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ओके, जस्टिस जो प्रियम्बल में दिया हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से we have taken the idea of, you would all know, liberty, equality and fraternity, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय ये आइडियाज ओरिजिनेट हुई थी और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये आइडियाज है और फिर हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। बट आपको ये भी साथ में पता होना चाहिए कि the concept of republic has also been taken from the French Constitution into the Indian Constitution. Okay. South African Constitution से we have taken the procedure for Constitution Amendment Acts, जो हम इतने सारे देख रहे हैं, पूरे लेक्चर भर पूरी सीरीज में हमने Constitution Amendment Acts बहुत सारे देखे। The procedure of amendment to the Constitution, कि कैसे आप अमेंड कर सकते हैं। वी नो 3 अलग अलग तरीकों से वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड थ्रू रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये चीज हमने ली हुई है फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑल्सो जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं, जो हमने पहले बताया था कि अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी, कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दैट वी हैव टेकन फ्रॉम, उनका इलेक्शन कैसे होगा, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है ये कैसे नॉमिनेट होंगे, इसका प्रोसीजर वी हैव टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, right? And lastly, the Japanese Constitution. Japanese Constitution से we have taken procedure established by law. Procedure established by law has been taken from the Japanese Constitution. Rule of law हमने ब्रिटेन से लिया है। Rule of law ब्रिटेन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दीज वर द सोर्सेस दैट वी हैव टेकन few of our provisions from.
इसके अलावा what other important features do we see in our constitution? कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। ये हमने अमेंडमेंट पढ़ते हुए समझा था कि कैसे रिजिड है, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी, रटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स, इतना लग रहा है आपको, और कैसे फ्लेक्सिबल है कि कुछ प्रोविजन ऐसे भी है जो आप सिंपल मेजॉरिटी से भी पास करवा सकते हैं। इट्स अ फेडरल सिस्टम with a unitary bias। यूनिटरी बायस कैसे होता है? फेडरल तो है, सेंटर अलग है, स्टेट अलग है तो है, लेकिन यूनिटरी बायस एक ही है पूरा, बिकॉज सेंटर देन समटाइम्स बिकम्स पावरफुल इमरजेंसी के समय में and takes over the functions of the takes over the functions of the state। मतलब यूनिटरी बायस तो है, राइट। And then we see there's a synthesis of parliamentary sovereignty with judicial supremacy। पार्लियामेंट सॉवरेन तो है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जिसको जुडिशियल रिव्यू ना हो या जुडिशियरी खारिज ना कर पाए। अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, भले कितनी भी सॉवरेन हो पार्लियामेंट, ठीक है। And this synthesis has been taken from Britain and America, जहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया हुआ है एंड ब्रिटेन से लिया हुआ है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट। और हम देखते हैं कि हमारे पास जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी, this is an integrated judiciary but also an independent one। इंटीग्रेटेड कैसे है एंड इंडिपेंडेंट कैसे है, ये दोनों चीजें हमने जब जुडिशियरी पढ़ा है तब बहुत अच्छी तरह से समझा, राइट। वी आर अ सेक्युलर स्टेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये सेलिएंट फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, हमारे स्टेट को सेक्युलर बनाता है। एंड वी हैव सीन कि इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वी हैव एडेड टू आवर प्रीएम्बल एज वेल। और हमने प्रीएम्बल पढ़ते टाइम पे ये देखा था कि ये वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया है, बट उसके पहले क्या हम सेक्युलर नहीं थे? ना, तब भी हम सेक्युलर थे। वी हैड प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ व्हिच मेड अस सेक्युलर, बट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं था पहले, इम्प्लिसिट था इन अदर प्रोविजंस, बट इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक्सप्लिसिट बना दिया है इन द प्रीएम्बल, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि वी वुड हैव अ 3-tier गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, मतलब वी नो, हमने लोकल गवर्नेंस पढ़ा तब देखा कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स, इनसे व्हाट डू वी हैव? 73rd में पंचायत एंड 74th से म्युनिसिपैलिटीज। एक पार्ट 9 एंड स्केड्यूल 11 ऐड किए गए हैं। पार्ट 9A एंड स्केड्यूल 12 ऐड किए गए हैं, ठीक है। These are all the important features of our constitution, ठीक है। That is all for this chapter. I hope you
had a better understanding of the Constitution overall through this initiative that I had taken up for you through this polity lecture series. This brings us to an end of the polity lecture series in itself. So I'll be alive with you for the last session, which would be a little fun session, not an educative one. We shall catch up probably tomorrow. I'll notify the timing, okay? And that would be the end of this lecture series, okay? Thank you guys. Thank you so very much for being with me, for being so patient, for patiently listening to me and giving me this opportunity to uh, reach out to all of you and share my knowledge, share my passion about sharing knowledge with you guys. I'm so thankful to you. Thank you so much. Thank you.